Hello students, due to the government instruction and the school decision, we have to close the offline classes for 11th standard also, and we have to again come back with the online classes. So from today we are continue our syllabus with the online classes. તો મારા તરફથી રિક્વેસ્ટ છે કે ભાઈ દરેક સ્ટુડન્ટ્સ હવે ફરી પાછું ઓનલાઈન થયું છે તો આળસ ના રાખતા જે એફર્ટ અને જે સ્ટ્રેટેજીસ તમને સમજાયેલી છે એ સ્ટ્રેટેજી મેન્ટેન રાખીને તમે સિલેબસ કન્ટિન્યુ રાખજો જેથી કરીને આપણે ફરી થોડાક ટાઈમ પછી જ્યારે ફરી ભેગા થઈએ કાં તો 11થમાં કાં તો 12થમાં તો આપણને આપણો સબ્જેક્ટ્સ કન્ટિન્યુ કરતા અને પ્રિપરેશન્સ કરતાં વાંધો ના આવે અંદર. ઓકે, આપણે last times ની વાત કરીએ તો in last time we have covered about the Newton's universal gravitational law, and in which we are try to derive the centripetal acceleration of the moon. Okay, and we are try to comparing the acceleration of moon, centripetal acceleration of moon with the gravity acceleration, and we are found that that is very smaller. That is, moon's centripetal acceleration is found to be very smaller, and it is around to be 2.7 into 10 raised to minus 3 meter per second square. Okay, and from that Newton tried to identify that what is the relationship between the acceleration and the distance, as the moon is farther from the earth and the earth's surface gravitational is greater. So it means that with the distance the gravitational acceleration is decreasing. So what is the relations between them? As distances increases, gravity acceleration decreases. It means that they are the reciprocal relation. But exactly reciprocal? No. By doing the some calculatory part, he is found that it is actually reciprocal square reciprocal. यानी कि जो एक्सेलरेशन है बराबर एमना शू है स्क्वेरना डिस्टन्सना स्क्वेरना रेसिप्रोकल प्रमाणे शू थाय छे प्रपोर्शनल थाय छे अंदर. तो फाइनली इन एक कंक्लूजन्स मळ्युं के सपोज जो आ रीते आपणे लेता होय बराबर तो इफ वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ AM एंड G, ओके, देन इट विल बी बिकम द रेशियो ऑफ RE एंड RM, yes or no, और उसका स्क्वायर होगा. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ RE, दैट इज 6400 किलोमीटर, एंड RM दैट इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो जब आप इनका रेशियो लेगा उनका स्क्वायर करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अंदर, और जी को आप यहाँ पे ले जाओ अंदर बराबर, तो दोनों केसेस में आपको AM की वैल्यू वही की वही मिलेगी जो ऊपर वाले केस में हमने डिराइव की थी अंदर बराबर. तो यहाँ पे फाइनली प्रूव किया हुआ अंदर कि हियर द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, एंड दैट रिलेशन इज A proportional to 1/r². And from the Newton's law we know that F equal to ma. If acceleration is changed then मास तो कभी चेंज होने नहीं वाला, वो तो यूनिवर्सल क्वांटिटी है अंदर बराबर. कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो फिक्स्ड होता है अंदर बराबर. तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या निकला अंदर भाई कि अगर एक्सेलरेशन का वो रिलेशन, देन इट मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स शुड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो यहाँ से न्यूटन को फाइनली एक रिलेशंस मिला विद द डिस्टेंस दैट F इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड बाय using this relation he is trying to estimate it now another dependency factor, that is mass. ओके, यानी कि मास का क्या डिपेंडेंसी वो फाइंड किया, और वहाँ पे उसको पता चला अंदर कि भाई कोई भी बॉडी अगर लेते हैं और उसके बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं अंदर बराबर, देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी विच यू हैव टेकन टू कैलकुलेट द फोर्स. ओके, हमने फोर्स कैलकुलेट करने की जो बॉडी ली थी उनको ही हमको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करना है अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? Yes or no? बराबर. So finally Newton come into the relations that there is no other dependency of the force, it only depends on the m1 and m2 proportionally and r² inversely proportionally under. Okay, and from that Newton tried to define his main interesting law, that is the universal law of gravity, and the statement is that in universe every object attracts the other object. यानी कि यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगाता है अंदर, and that force having the value
इज प्रोपोर्शनल टू, समझना यहाँ पे न्यूटन ने जो इक्वेशंस दिया है वो किसका दिया है, उसके वैल्यू का इक्वेशन दिया है अंदर, बराबर। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि आपने जो दो बॉडी ली है, सपोज ये दो बॉडी, दोनों के सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दो अंदर, बराबर। तो वो डायरेक्शंस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, फोर्स मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। चल नेक्स्ट पॉइंट्स पे आगे बढ़े अंदर। नेक्स्ट है write the Newton's universal law of gravitation and represent it into mathematical expression। so again statement हमने जो रिलीज किया वही का वही है, every body in the universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional square of distance between them, बराबर। और न्यूटन ने ये जो रिलेशंस बताया उसकी बुक से, उसका नाम क्या है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसॉफी करके है, उसमें से इसका मेंशंस दिया गया अंदर। ओके नेक्स्ट दैट फॉर ऑब्टेनिंग द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ओके सो वी आर ट्राई टू कंसिडरिंग लेट द टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2 and the separated by the distance equal to r, then from the law of the Newton's gravitations we are directly write down that f proportional to m1 m2 divided by r square. Now if we want to replace the proportionality, we have to place the constant g, okay, so f equal to g m1 m2 divided by r square, where g is considered as the universal law of universal gravitational constant and its value is actually constant in the universe wherever whenever, जब भी चेक करोगे, कोई भी कंडीशन में चेक करो, इसीलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला गया है। और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर अंदर। ओके नो दैट द कैपिटल जी वैल्यू इज नॉट डिस्कवर बाय द न्यूटन, ओके ही इज ओनली गिव द कांस्टेंट वैल्यू अंदर। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज एक्चुअली फाउंड बाय द साइंटिस्ट नेम कैवेंडिश, बराबर। कैवेंडिश साइंटिस्ट था, उसने ये वैल्यू क्या की थी, डिराइव की थी अंदर। ओके नेक्स्ट थिंग, न्यूटन gave the equation of force but does not mention its vector form, okay। now we will try to define the vector form of the gravitational law, okay। so assume that I have the two body, okay, let name is 1 and second one is 2, okay। so if we have to find out the gravitational force, okay, then we have to see that which body you are considering as a reference, 1 और 2। तो 1 अगर ले रहे हो तो उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड वाला लगा रहा है, और अगर 2 ले रहे हो तो उस पर फोर्स कौन लगा है, फर्स्ट वाला लगा रहा है अंदर, बराबर। सो बेस्ड ऑन दैट यू आर फाइंड आउट द टू टाइप ऑफ फोर्स F12 एंड F21। F12 का मतलब क्या होगा, जो पहले उसकी ऊपर और जो बाद में आ रहा है उसकी वजह से, यानी कि F12 मीन्स व्हाट, द फोर्स ऑन वन ड्यू टू द सेकंड ऑब्जेक्ट। F21 का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू द वन। समझ में आया कि नहीं अंदर, बराबर। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेगा अंदर भाई, F12 और F21 दोनों का इक्वेशन तो वही का वही रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मास तो लेना ही हमको और डिवाइड बाय दोनों के बीच का ही डिस्टेंस लेना है अंदर, बराबर। बट इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट देम इनटू द वेक्टर फॉर्म, देन व्हाट वी हैव टू डू, F12 वेक्टर इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, जो लिखते थे वो तो है ही। then you have to write down r12 caret, okay, because we know that whenever we represent a vector, okay, then it will be represent in the form of what, magnitude and the unit vector का प्रोडक्ट अगर आप लिख रहे हो तो भी आप उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का एक अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में उसके साथ प्रोडक्ट क्या करो, उसका यूनिट वेक्टर। अंडरस्टैंड। नाउ F12 एंड F21 दोनों के केसेस में अगर आप देखने चाहो तो यूनिट वेक्टर इज व्हाट, r12 एंड अदर का क्या होगा, r21 होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब r12 और r21 का मतलब क्या हुआ, r12 का मतलब r2 माइनस r1 और r21 का मतलब क्या होता है, r2 माइनस r1, और यहाँ पे क्या होगा, r1 माइनस r2 होगा अंदर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो डिफरेंस ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, अपोजिट वाला ले, यानी कि 1 माइनस 2 ले रहे हो और दूसरे में क्या ले रहे हो, 2 माइनस 1 ले रहे हो अंदर।
बराबर। तो दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी भाई, अपोजिट होगी कि नहीं होगी अंदर। तो यहाँ पे भी वही है कि पहला वाला दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये डायरेक्शन में लगा है, दूसरा वाला कौन सी डायरेक्शन में लगा, उसकी एग्जैक्टली अपोजिट में लगाएगा। ओके, सो दैट्स वाई वी आर फाउंड दैट F12 और F21 दोनों सेम ही है, खाली माइनस साइन का डिफरेंस है, यानी कि दोनों की साइन खाली क्या है भाई, अपोजिट है अंदर। न्यूटन का थर्ड लॉ अपने आप में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो बस ये रिलेशंस हमको माइंड में रखना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास बहुत सारी ज़्यादा बॉडी है और उसके लिए आपको रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, देन यू हैव टू अप्लाई द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि सबका आप फाइंड कर लो और फिर उसका क्या कर दो भाई, एडिशन कर दो अंदर, वेक्टर एडिशंस कर दो अंदर। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ तो दे दिया अंदर, बट इट इज़ अप्लाई टू द ऑल द ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ एंड द पॉइंट मास इक्वेशन F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। यानी कि बोला क्या जा रहा है, अगर आप सामने एक पॉइंट जितना मास ले रहे हो, बराबर, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल ले रहे हो और सामने अर्थ जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, बराबर, ये इक्वेशन अप्लाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमारी अर्थ जो है, बराबर, उसको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करना होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? या तो फिर ऐसा करो कि हमारी अर्थ के सारे पार्टिकल्स हैं अंदर, बराबर, उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे बोला क्या गया अंदर कि ईच पॉइंट मास इन द एक्सटेंड ऑब्जेक्ट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द गिवन पॉइंट मास एंड दिस फोर्स विल नॉट बी ऑल इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि समझ लो हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये अर्थ का पार्ट है, उसकी वजह से उस पर अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला होगा तो यहाँ पे बुलाएगा, ये वाला यहाँ पे बुलाएगा, ये वाला यहाँ पे बुलाएगा। तो आप देख सकते हो सारे फोर्स की डायरेक्शंस क्या है भाई, डिफरेंट है कि नहीं अंदर, बराबर। इसकी वजह से ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, बराबर, कि नॉट इन सेम डायरेक्शन। सो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, बराबर। तो ये से सारे के सारे जो भी हमको पॉइंट मिल रहे हैं अर्थ के डिफरेंट बार, सबका फाइंड करो, उसको सुपर पोजिशन लो से ऐड करो और फिर उसके अंदर आप कैलकुलेशन यूज़ करके अपना आंसर रिजल्टेंट लाना है तो ला सकते हो। पर हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम तो डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमको ये पॉइंट अभी ध्यान में लेना नहीं है। पर रियलिटी क्या है वो भी हमको पता तो होनी चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो? ओके, नाउ वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब हमको न्यूटन का इक्वेशन तो मिल गया है भाई, क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अज्यूम करो कि हम यहाँ पे m1 की तौर पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसका मास m1 है, और m2 के तौर पे हम क्या ले रहे हैं भाई, me ले रहे हैं, यानी कि मास ऑफ अर्थ ले रहे हैं अंदर, बराबर। और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम अर्थ की सरफेस पे रख रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, r ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? ओके, सो हमारा फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा, अब F इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर, बराबर। इफ़ वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन इक्वल टू एम ए, ओके, सो एम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, क्या मिला, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई क्या मिला भाई, आर स्क्वायर मिला कि नहीं मिला अंदर, यस और नो, बराबर है। तो ये आपको अल्टीमेटली किसका इक्वेशन मिल गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया। किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या मिला, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर मिला अंदर। तो आपको अब जी की वैल्यू पता है, अर्थ की जो मास की वैल्यू है वो क्या लेनी है, 6 × 10⁻24 kg लेनी है अंदर, बराबर। और जो अर्थ की रेडियस है वो तो हम जानते हैं कितनी है, 64,000 किलोमीटर है अंदर, बराबर। ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपको जो जी की वैल्यू है वो क्या मिलेगी भाई, 9.77 समथिंग मिलेगी, जिसको हम रफली क्या बोलते हैं, 9.8 लेते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 9.8 वैल्यू आई तो आई कहाँ से अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो ये वीडियो में हमने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या था वो समझा, और ये एक्सेलरेशन जो है, बराबर, उसका इक्वेशन हमने कैसे डिराइव किया वो यहाँ पे हमने समझा अंदर। ओके, अब बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।